Hello future lawyers, are you also preparing for CUET PG LLB exam? And are you worried on how to start with this exam so that you can ace this exam with the best way possible? Don't worry, I'll bring 5 hacks that can actually boost your score and will be a guiding factor on how you can start preparing for your exam. And no, I'm not here to tell you to study harder, I'm here to tell you how to study smarter with the less time so that we can make a greater impact. So the first hack is know the syllabus like a lawyer knows a law. So before we even get started, the most important part is the syllabus and the exam pattern. Most students actually miss this part, but I would say that this is more important than knowing your syllabus. Once you know what the exam is going to test you on and once you understand the exam pattern, you will be able to perform much better in the way. एंड आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम आपसे क्या टेस्ट करता है, वो आपका लीगल एप्टीट्यूड किस तरीके से टेस्ट कर रहा है, लॉजिकल एप्टीट्यूड किस तरीके से टेस्ट कर रहा है एंड रीडिंग एप्टीट्यूड भी, सो दैट यू कैन ग्रो ऑन दीज पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स टू स्कोर बेटर. तो इसके लिए आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है जिससे आप समझ जाओगे आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ लाई करती है एंड आपकी वीकनेसेस. Then we'll work on both of them so that we can take them above an average level and can score the best. इससे आपको लीगल रीजनिंग में समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे आपको प्रिंसिपल देंगे कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस, तो अगर वो कंडीशंस मेट नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा. इसके लिए आपको प्रिंसिपल में सब कुछ मेंशन्ड होगा, आपको उसे अप्लाई करना है. सो उससे हमें ये समझ में आएगा दैट दिस एग्जाम इज नॉट अ मेमोरी बेस्ड एग्जाम, रादर अ कॉम्प्रिहेंशन एंड अ लॉजिकल एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम. जब हम ये समझ लेंगे तो हम उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे. Now, second hack is that logical reasoning is a rank booster in this exam. Unlike other exams where logical reasoning is too typical and sometimes you miss out on scoring well, CUET में logical reasoning एक ऐसा subject है जहाँ पे आप easily 100% score कर सकते हो. So instead on focusing more on subjects like GK or subject where you have to recall and remember all the information, it is better that we start with a subject जो आपको confidence boost दे और आपको ये surety दे कि आप इसको पढ़ के अच्छे से अपना score कर सकते हो. तो लॉजिकल रीजनिंग में आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे टोन, अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया, कंक्लूजन, इनफ्रेंस एंड अजम्पशन. इनकी पहले कंसेप्ट वाइज अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए. Then once the concept is finished, move on to practicing and then practice as much as you can so that you can excel in this particular part. Now treat each passage like a courtroom argument. Just like how a courtroom argument is divided in basic parts, logical reasoning arguments are also divided into parts so that you can understand what a premise is, what a conclusion is, what the author is trying to claim, and in the end, what is the main idea of a whole structure. Once we gain this perspective, everything will fall easily into the place. Third hack is focusing on GK and current affairs. So instead of focusing on how do we mug current affairs and GK, our focus should be on mapping them. So we can map out all the important current affairs that is been happening in a month and then try and relate it to the static GK or to other current affairs that are coming into place. So for example, आप लीगल रीजनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लेट्स से एक नया रिजर्वेशन ऑफ वुमेन बिल पास होता है, तो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके, आप उसको पॉलिसी एंड गवर्नेंस से रिलेट करके, आप उसे किसी इंटरनेशनल लॉ से रिलेट करके एक माइंड मैप बना सकते हैं जो आपकी स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स जीके को साथ में कंप्लीट करेगा. Then you should also focus on the current affairs compendium. Instead of making notes out of a newspaper, which will become very tedious and very difficult in the end for you to revise, instead opt for current affair compendiums for each month and treat them like a one notebook for a particular month. आप उसे पढ़ के खत्म कीजिए एंड देन उससे और स्मॉलर नोट्स बनाइए जो एंड में आपके रिवीजन में आपकी बेस्ट हेल्प करेंगे. फोर्थ हैक इज मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट आर सुपर 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 इम्पॉर्टेंट. ये आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस होती है बिफोर रनिंग द मैराथन. तो मैराथन रन करने से पहले हम स्मॉल रन्स करते हैं जिससे हमारी प्रिपेयर्डनेस पता चले कि हम फाइनल मैराथन के लिए रेडी हैं क्या. वैसे ही मॉक टेस्ट आपको ये मिरर की जैसे दिखाता है कि आप फाइनल टेस्ट के लिए रेडी हैं क्या. तो एक होता है कंप्लीट मॉक टेस्ट जो आपको देना है जिससे आप सीखोगे आपका टाइम मैनेजमेंट, आप किस तरीके के कितने क्वेश्चंस में ट्रैप हो रहे हो एंड कैसे उनको इम्प्रूव करना है और कहाँ आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं. उसके बाद आपको मिलते हैं शॉर्ट टाइम टेस्ट जो जैसे सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन का होगा, जीके सेक्शन का होगा, इंग्लिश सेक्शन का होगा. ये आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है. तो सेक्शनल टाइम टेस्ट और मॉक टेस्ट इन दोनों को अगर हम साथ लेके प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम इजीली हमारे फाइनल एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं. एंड द फिफ्थ हैक इज एनालाइजिंग दी सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट. हमें सिर्फ मॉक टेस्ट देके या सेक्शनल टेस्ट देके अपना स्कोर देख के वहां नहीं छोड़ना है.
Instead, we should minutely decide on where we lagged and where we excelled at. हमें अच्छे से एनालिसिस करके देखना चाहिए अगर हमारे लॉजिकल रीजनिंग में मार्क्स कट रहे हैं तो कहाँ कट रहे हैं, हम किन ट्रैप क्वेश्चंस में फंसे, क्या सिली मिस्टेक्स करी. अगर आपकी लीगल रीजनिंग में कट रहे हैं तो कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं है. जीके और करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपका बैकड्रॉप क्या है, इंग्लिश में सो व्हाट पार्ट इज ट्रबलिंग यू, द ग्रामर और वोकैबुलरी. ईच क्वेश्चन को हम अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, तो हम मेक श्योर कर सकते हैं कि नेक्स्ट मॉक में जाने से पहले हम उसे अच्छे से रिवाइज करके जाएं जिससे हम सेम मिस्टेक्स रिपीट ना करें. All of these hacks, if applied together and with constant amount of uniform studies, you will definitely excel in this exam. So please let me know in the comment box what is troubling you about CUET exam and what more would you like me to cover. All the very best.